کہ ہندوستان نے جتنا پیسہ آج تک کشمیر کو بھیجا ادھر سے، اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال ہوتا تو آج دبئی اور پیرس کشمیر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی. انہوں نے دو ہاتھوں سے ہندوستانی روپیہ انہوں نے بانٹ کے کھایا. میں سمجھتا ہوں بہاری سے کشمیری زیادہ غریب ہیں، لیکن ان دنوں شیخ عبداللہ صاحب کشمیر کی سیاست میں آگے تھے. وہ ہمارے گھر آئے کہ آپ سیاست جوائن کرو، نیشنل کانفرنس جوائن کرو. میرا سوال ہے لوگوں سے، کیوں آپ چلتے ہو غلط انسانوں کے پیچھے؟ چیف منسٹر کشمیر کا آئے جو آنیسٹ ہو اور پورا قانون کی پاسداری کرے. جج ہوتا ہے عوام الناس. ناظرین السلام علیکم. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ممتاز شخصیت ہے، مقبول میر صاحب، جو بارہمولہ کی سرکردہ شخصیت ہے، سرکردہ شہری ہے. ایک بڑے قلم کار کی حیثیت سے یہ ابھرے ہیں اور بحیثیت وکیل کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ بارہمولہ میں. یہ تجارت سے بھی وابستہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کا بڑا رول ہے. میر صاحب لینڈ لارڈ بھی ہے اور ایک فارمر بھی ہے، بحیثیت کسان بھی یہ کام کر رہے ہیں. میر صاحب کا رول سیاست میں بھی ہے. جاننا چاہیں گے کہ میر صاحب آخر آپ نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا؟ میر صاحب. میں جامباز پورہ بارہمولہ سے ہوں. میرا نام مقبول ہے اور ڈائناسٹی کاسٹ میر ہے. جب ہم نے BA بارہمولہ کالج سے کیا تو ان دنوں شیخ عبداللہ صاحب کشمیر کی سیاست میں آگے تھے. وہ ہمارے گھر آئے کہ آپ سیاست جوائن کرو، نیشنل کانفرنس جوائن کرو. کیونکہ میں ان دنوں کالج ہی پڑھتا تھا، انڈر ایج تھا. میں نے کہا نئے الیکشن پر دیکھا جائے گا کہ کیا کیا جائے. بہرحال وقت آ گیا، میں نے BA پاس کیا، پھر یونیورسٹی میں لاء کی گریجویشن پاس کی 1980 میں. تو اس زمانے میں نیشنل کے سوا یہاں کوئی پارٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوا کرتی تھی کہ کچھ مقابلہ ہو جائے. لیکن چند وجوہات کی بنا پر میں نے انکار کیا شیخ صاحب سے، فاروق عبداللہ سے، کہ میں آپ کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑوں گا. ایسے میں میری پریکٹس کورٹ میں جاری رہی. تو بیچ میں شوق ہوا کہ آپ کچھ لکھیں، چونکہ کشمیر کے لوگ ہمیشہ سے جو بھی لیڈر ہمارا آتا ہے دلی سے، اس کے پیچھے چلتے ہیں. اس کے خلاف رہا ہوں میں ہمیشہ. میں چاہتا تھا کہ کشمیر میں کوئی ایسا لیڈر ابھرے جس کو کشمیری عوام کی درد ہو ہر ایک معاملے میں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ تجارت ہو، بزنس ہو، مذہبی امورات ہوں یا باقی فیلڈس جتنے بھی ہیں، ان میں عام لوگوں کی رہنمائی ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تک میں نے کشمیر میں ایک بھی لیڈر، ایک بھی آدمی ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے دل میں عوام کی ہمدردی ہو. بس صرف اپنے گھر بناتے ہیں، اپنے بزنس کو بڑھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو آگے لیتے ہیں. رشوت خوری عام ہے، جال سازی ہے، مہنگی داموں میں چیزیں بکتی ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں. ایسے میں ابھی بھی میرے دل میں شوق ہے کہ اگر اس وقت بھی کشمیری عوام، خاص کر پڑھے لکھے لوگ متحد ہوں، ایک ایسی پارٹی بنائیں جو سیاست جانتے ہوں، فوائد
की कोशिश करना है ताकि अवाम राहत महसूस करे। हाँ मीर साहब, एक बात आपने कही है कि मैं वकालत में आया हूँ और जी। वकालत भी की है यहाँ जी जी करता डिस्ट्रिक्ट हूँ। कोर्ट बारामूला में, और अभी कर रहे हैं। बिल्कुल और बीच में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफर दिया है कि आप इलेक्शन लड़े, बिल्कुल बिल्कुल तो आपने लड़ने से इनकार किया। इनकार किया। उसके भी कुछ वजूहत हैं। बिल्कुल हैं ठीक सियासी है। वजह। अच्छा, अगर आपको ये सियासी तौर पर ये आपसे जानना चाहेंगे हम कि अगर मकबूल शख्सियत यहाँ जम्मू कश्मीर की मानी जाए, जो आम लोगों की राय है जी। या भारत में जितने लोग हैं उनकी राय है कि वो शेख साहब की शख्सियत थी, वो मकबूल आम शख्सियत थी जम्मू कश्मीर में। अच्छा, आखिर आपकी नज़र में शेख साहब मकबूल शख्सियत थी या नहीं थी? उन्हें कश्मीरियों की दर्द थी या नहीं थी? या उन्होंने सही रास्ता दिखाया या नहीं दिखाया? आप उनके साथ उठे हैं, बैठे हैं, और ऑफर भी आपको मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इलेक्शन लड़ना। जी। अगर आपसे ये जानना चाहें हम, तो क्या राय होगी आपकी? नहीं, जब गौर से हम देखेंगे तो शेख अब्दुल्ला साहब को कश्मीर की दर्द थी स्टार्ट में। फिर हम खूब जानते हैं कि हालात कैसे हुए, कहाँ कहाँ से बीच में बातें आ गई कि उनको फिर वो स्पिरिट नहीं रहा जो स्टार्ट में उनको था। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने भी कुछ लोगों के लिए ख़ास काम नहीं किया, बस लोगों को कहा आपको बिजली देंगे, रोड्स देंगे। वो तो गवर्नमेंट का काम होता ही है, रोड्स बिजली तो बनेगी, पावर तो आएगा, वो तो गवर्नमेंट का काम है। हम फीस देते हैं, उनको बनाना है। लेकिन जो असली मकासद हैं कश्मीरी अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो काम करने हैं, वो आज तक कभी नहीं हुए। मैं ऐसा कहूँ, हिंदुस्तान ने जितना पैसा आज तक कश्मीर को भेजा उधर से, अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल होता तो आज दुबई और पेरिस कश्मीर के मुकाबले में कुछ नहीं होती। अपने घर बनाए और अपने रिश्तेदार बनाए, जहाँ तक कि मेरिटोरियस लड़के भी फेंके गए बाहर, और अपने मनपसंदा कैंडिडेट जो कि उनके रिश्तेदार हैं या और कुछ वजह पर उन्होंने सामने लाए। उससे फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी गड़बड़ चलता है, बाकी फील्ड्स में गड़बड़ चलता है। यहाँ इतनी महंगाई है, हिंदुस्तान को गलत फहमी है कि कश्मीरी आबाद हैं। मैं समझता हूँ बिहारी से कश्मीरी ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन जो पैसा यहाँ फ्लो होता है ये सब इलीगल है। ये कहीं हलाल का पैसा नहीं है। ये पता नहीं किन ज़राया से यहाँ हासिल होता है। जहाँ इस कश्मीर में जो काम करता है अपने हाथों से, चाहे वो फ्रूट वाला हो या और कोई बिजनेस मैन हो, वो तो एक मकान भी 10 साल में नहीं बना सकता है। लेकिन एक पटवारी का मकान आप देखिए, शाही दरबार जैसा उनका महल होता है, मकान होता है, 3-3 मंजिला, 2-2 मंजिला, उनके पास गाड़ियां हैं। उनकी तनख्वाह जब देखते हैं हम, बाकी चीज़ें देखते हैं, तो हैरान पड़ जाता है इंसान कि ये बिजनेसमैन कैसा बिजनेसमैन है, ये कमाता क्या है। मतलब ये कि रिश्वतखोरी और जालसाजी और बेईमानी कश्मीर के लोगों के दिलों में बस चुकी है। हालात सिर्फ सियासी हैं। अगर यहाँ के सियासी हालात अच्छे होते तो यहाँ का निज़ाम भी अच्छा होता, तो लोग भी अच्छे होते। अच्छा मीर साहब, आपने कहा कि शेख साहब की शख्सियत मकबूल आम थी, सही है, बिल्कुल स्टार्ट में सही। फिर उसके बाद जो उसके सीने में दर्द थी कश्मीरियों की, बिल्कुल वो भी था, और बाद में आप कह रहे हैं कि वो दर्द खत्म हो गया, उसके सीने से या दिल से वो दर्द निकल गई। अगर मीर साहब आपसे ये हम जानना चाहें कि इसकी वजह क्या थी? यहाँ जो भी आता है वो तो किसी के इशारों पर चलता है। उन्होंने इतने इरोजन किए कॉन्स्टिट्यूशन में कि कहने की बात नहीं। लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि हमारे जो भी वादे थे दाएं बाएं आगे पीछे किसी से,
وہ سب اسی نے ہی تو ختم کر دیے. صرف جو بھی بقایا تھا وہ فاروق عبداللہ نے کیا. پھر اس کے بعد جتنے بھی اور بقایا کچھ تھا وہ تو مفتی صاحب نے کیا. میں کہتا ہوں سوال ہے لوگوں سے, کیوں آپ چلتے ہو غلط انسانوں کے پیچھے؟ ایک ایسی پارٹی بناؤ, ایسے اشخاص کی تلاش میں رہو ہر اسمبلی سیگمنٹ میں جو واقعی لوگوں کی ہمدردی رکھتا ہو, جو پروگریس کرائے لوگوں کو تھرو لیگل مینز. یہ نہیں کہ چلو جی آپ کا بیٹا لگائے میرا ساتھ دو, نہیں. جو آنیسٹ انسان ہیں ان کو آگے لاؤ, چاہے الیکشن آج ہوں یا کل ہوں. لیکن بندے کا میرا سلوگن ہی تھا پچھلے الیکشن میں کہ سوچ سمجھ کے لوگوں, سوچ سمجھ کے, مجھے اگر ووٹ نہیں دینا ہے لیکن سوچ سمجھ کر دے دو, ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کرو. میں نے اتنا زور نہیں دیا لوگوں پر کہ آپ مجھے اپنا ووٹ دو, نہ. میں نے کہا جو بھی آپ کو اچھا آنیسٹ کینڈیڈیٹ ہاتھ میں آئے گا, نظر میں آئے گا, اس کا سپورٹ کرو. اور میں نے پیشن گوئی اسی وقت کی جب سرکار بنی. میں نے اسی وقت کہا کہ یہ 2.5 سال سے زیادہ آگے نہیں ٹکے گی. ابھی 2.5 سال تو ادھر کے ہی, ابھی کشمیر سنبھلتا نہیں ہے. آج تو 2023 ہو گیا, ابھی حالات سدھرتے نہیں. دیکھیے وکیل صاحب, ٹھیک بات ہے, آپ نے 40-45 سال پہلے لا کیا ہے, جی جی اور ایک بڑا دور رہا ہے آپ کا. تو آپ تب جوان ہوں گے, تب جوان تھے آپ جب اندرا جی کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, شیخ صاحب کو بھی دیکھا ہوگا, ان سے آپ ملے بھی ہوں گے, نارو جی کو بھی دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, مگر پھر بخشی غلام محمد آئے ہیں, میر قاسم صاحب آئے ہیں, صادق صاحب آئے ہیں, اور بھی باقی چیف منسٹر غلام محمد شاہ صاحب آئے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کی نیتی یا اس نے اپنی وہ رنگ نیتی چینج کی ہے, مگر اس سے پہلے کہ جب شیخ صاحب تھے نہیں تو غلام محمد یہ بخشی صاحب آ گئے, بخشی صاحب چلے گئے تو میر قاسم صاحب آ گئے, پھر آتے گئے. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر شیخ صاحب نے کیا کچھ تو انہوں نے کیا کیا؟ شیخ صاحب کے آنے سے پہلے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں, تب تو میں اسکول میں پڑھتا تھا, پرائمری کلاسوں میں. بخشی صاحب بھی ہمارے گھر آئے, لیکن اس وقت بھی کیا ڈائلاگ ہوا میرے خیال میں اس وقت 3 یا 4 جماعت میں پڑھتا تھا. اس وقت بھی ان کو کہا گیا, ہمارے بزرگوں نے گھر میں اس کو کہا, ہمارے گھر میں ہی, کہ کشمیری قوم کی سوچو, ان کے لیے کچھ اچھا کرو. لیکن میں اس وقت بچہ تھا, میں کیا کہہ سکتا تھا. پھر شیخ عبداللہ جب آ گئے تو اس وقت میں تھوڑا ہوش سنبھالا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ ایسا نہیں چلے گا, آپ کو لوگوں نے ساتھ دیا ہے, لیکن لوگوں کی بھی آپ نے سوچنی ہے. اسی طرح جو بھی آ گئے یہاں, یا تو اور کسی پارٹی کے تھے, کشمیری کوئی نہیں تھا. کشمیریوں کی ہمدردی آج تک میں نے کسی میں نہیں دیکھی, ان لیڈروں میں سے کسی میں بھی نہیں دیکھی. بس صرف اپنے گھر کے بنانے کے پیچھے لگے, اپنے رشتہ داروں کو بنایا, اور 2 ہاتھوں سے ہندوستانی روپیہ انہوں نے بانٹ کے کھایا. صحیح بات ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پیسہ, جتنی رقم ہندوستان سے بھارت نے یہاں کشمیر میں بیچی ہے یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ یہاں کے سیاسی حکمرانوں نے ہڑپ کی ہے. بالکل, لیپس بھی فنڈس ہو گئے, لوٹ کسوٹ بھی کیا, لگایا نہیں اپروپریٹ ٹائم پر, اپروپریٹ جگہ پر نہیں لگایا. یہاں تو ایک بزنس مین اگر کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنے 5-10 کنال میں اپنی جنت بناتا ہے. لیکن جب ہندوستان نے اتنا سارا پیسہ بھیجا ادھر, تو جموں کشمیر کیوں نہیں اتنی ترقی دکھاتا ہے جتنی ہونی چاہیے تھی ہماری نظروں میں, اتنا پیسہ آ کے. اچھا وکیل صاحب, غلام نبی آزاد کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو؟ الطاف صاحب بخاری کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی کہ الطاف صاحب بخاری بھی ریاست کے سرکردہ سیاستدان رہے ہیں. جی پی ڈی پی میں ان کی شمولیت تھی, آج انہوں نے الگ ایک پارٹی بنائی. کانگریس میں وہ غلام نبی آزاد تھے, پھر بھی انہوں نے آج ایک اپنی الگ پارٹی بنائی ہے. تو ان کا کیا رول رہا ہے سیاست میں؟ میں لیڈر اس کو مانتا ہوں جو گراس روٹ سے آئے, جس کو لوگ
चाहते हों, उसका एक स्लोगन हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या मंशूर है, मैं क्या बहबूदी के लिए आपके लिए करूँगा, तो वो लीडर है। जो ऊपर से ही आए, आप मुझे लीडर मानो, वो कैसा लीडर है? मैं उसको लीडर मानता नहीं। लीडर होना चाहिए जो ग्रास रूट से उभरे और उसका मंशूर हो, वो भी ड्राफ्टेड हो, कि लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी ये बातें हैं, इस पर हम इसको सपोर्ट देंगे या इन बातों पर इसको हम रिजेक्ट करेंगे। वो तो आज तक हुआ नहीं। अच्छा मीर साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रोशनी बिल पास की है। इस रोशनी बिल से क्या हमको वैसे कश्मीरी फायदा मिला या नुकसान पहुंचा? अगर फायदा हुआ तो किसका हुआ, अगर नुकसान हुआ तो किसका हुआ? रोशनी बिल से तो आवाम का फायदा कुछ नहीं हुआ। फिर वही बात, चंद अशखास कश्मीर में जो उससे फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको कल अदम करार दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन इस वक्त जो भी मुहिम चलती है कश्मीर में, किसी गरीब के पास मकान के नीचे 5-10 मलरे हैं, उसके पीछे लगना अच्छी बात नहीं। जो भी 20 साल से कहीं बस रहा है, उसका घर उजाड़ना, गिराना अच्छी बात नहीं है। हाँ, जिसको स्विमिंग पूल बना होगा 5 कनाल 10 कनाल में, जिसने बाग बनाए होंगे 5-10 कनाल में, जिसने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई, आमदनी के ज़राए, उनको गवर्नमेंट अपने तहवील में ले और सरकारी करार दे उन चीज़ों को। बाकी जो अवाम बसती है 5-10 मलरे में, उनके साथ छेड़ना अच्छी बात नहीं है मेरी नज़र में। देखिए वकील साहब, आप राइटर रहे हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, आप वकील बासित काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बारामूला में, आप बड़े बड़े केस लड़े हैं जी। मगर एक चीज़ मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि ये रिश्वतखोरी जो आप कहते हैं कि लूट खसूट है, रिश्वतखोरी है, बेईमानी है, तो ये शुरू कैसे हुई और ये कौन कर रहे हैं? जबकि आप इसके खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ हूँ, और देखने वाली बात यह है कि हमारे सामने दीदा दिलीर से ऐसा कुछ हो रहा है मगर पूछने वाला कोई नहीं है। ये कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो भी गवर्नमेंट आती है या जिसको भी इलेक्शन लड़ना है, वो इन बातों के लिए लोग देखते हैं कि कौन क्या करता है आगे। मैं एक मिसाल दूं, मैं एक पहाड़ी पर गया वोट मांगने के लिए, वो उधर कोई आर्मी की वर्दी पहन के लकड़ी काट रहा था कुल्हाड़ी से। मैंने उसको कहा, भाई साहब ये वर्दी पहनना, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो? उसने कहा कोई सिविल इंजीनियरिंग में। मैंने कहा ये वर्दी लगाना ऑफेंस है। उसने उधर से कहा, ये आज इतने कड़क हो, कल आप वोट लेके कितने कड़क होते, इसलिए मैं आपको वोट नहीं दूंगा। मैं जानता हूं आप बहुत कड़क हैं, आप बहुत सख्त हैं, आप ऑनेस्टी मत दिखाओ। अगर आपको वोट जीतना है तो आप कहो जो भी मर्जी है वो करो, आप घर बैठे तनख्वाह लो, ऐसी ऐसी बातें कहो। ये कानून वानून हम नहीं मानते हैं। ये मैं समझाने के लिए मिसाल बोला। ये हाल है अवाम नास का। उनको एक ऐसा इंसान चाहिए जो कानून पर गिरफ्त न करे, कानून शिकनी कोई करे, उसको कोई पूछताछ ना हो, उसको लिबर्टी हो, जो वो करे मर्जी। इसलिए मैं चाहता हूँ एक ऐसा चीफ मिनिस्टर कश्मीर का आए जो ऑनेस्ट हो और पूरा कानून की पासदारी करे, ऑनर करे कानून को, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। यही बातें सब मिला के जिम्मेदार हैं एक अवाम को बनाने में या बिगाड़ने में। अच्छा मीर साहब, आप वैसे आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि सियासत का आपको बड़ा अच्छा तजुर्बा है। बिल्कुल, शौक भी है और थोड़ा तजुर्बा भी है। तो अभी ये शौक बदस्तूर कायम है? बिल्कुल कायम है। अच्छा मीर साहब, एक बात आपने ये की है कि पटवारी हाँ, का पटवारी घर बाकी उसने महल, एक मिसाल दी आपने, बिल्कुल, उसने महल बनाया, आमदनी से 100 गुना ज्यादा उसकी इनकम है। बिल्कुल।
आमदनी से 100 गुना ज्यादा उसने अपनी इनकम बनाई है, बिल्कुल महल बनाया, वो बनाया, ये बनाया, सब कुछ बना। आप ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मगर मैं ये कह रहा हूँ को अगर एक वकील को भी हम देखें, एक R&B वाले डिपार्टमेंट के एहलकार को भी देखें, PHE में काम करने वाले एक मुलाजिम को भी देखें, तो उनको आपने कभी देखा है कि उनकी आमदनी और उनकी प्रॉपर्टी और उनका जो ये लूट खसूट क्या है, कितना है, मिसाल तो किस तरह है, मिसाल- जबकि आप पटवारी, सिर्फ पटवारी को ही ना, इल्जाम मैंने ठहरा पटवारी को ही गिरफ्त नहीं की। मैंने कहा कि पटवारी का नाम लिया मैंने कहा मिसाल के तौर पर पटवारी को लीजिए। ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी है। रिश्वत तो आम है। अब मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ रिश्वत खत्म हो, यहाँ ऑनेस्टी हो। देखते हैं कब तक वो कामयाब होता है और कहाँ तक होता है। हम मेरे जैसे लोग उसका सपोर्ट देंगे हमेशा, चाहे और भी कोई हो। ऑनेस्टी के नाम पर हम सपोर्ट देने वाले हैं। ये रिश्वत कश्मीर से कम ख़त्म। कश्मीरी बदनाम हो चुका है कि ये एक नंबर करप्ट है, लेकिन इसके सियासी वजूह हैं। कश्मीर के खून में आ गई है ये करप्शन वगैरह, बेईमानी, मगर इसके वजह है ये सियासी सियासत, इसकी वजह है गलत सियासत। अगर यहाँ ऑनेस्ट रहबर होता, लीडर होता, तो लोग भी ऑनेस्ट होते। जब ऊपर से ही कोई आ गया, उसको पता है मुझे क्या करना है, लोगों को भी पता है, इसको लोग भी देखते हैं। हमें भी अगर कुछ मिले इस लूट खसूर से, अच्छी बात है। बेस्ट जज होता है अवाम पहले ही देखता है आज मरकज में किसकी चलती है, उसका साथ देते हैं। ऑनेस्ट है या नहीं है ये नहीं देखते हैं। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि जितनी ही आमदनी है आपकी उसी में गुजारा करो। आज गरीब हो कल अमीर हो जाओगे, लेकिन ये बेईमानी के तरीके छोड़ दो। बेईमान इंसानों के, बेईमान लीडरों के साथ मत चलो। सिर्फ ईमानदारी देखो और कैसे ये हुकूमत चलाता है उसका मंशूर देखो, उसके स्लोगन्स क्या हैं वो देखो, तब जाके उनका साथ दो। आंखें बंद करके किसी को भी साथ देना, चाहे ये गलत आदमी है या और कुछ है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा वकील साहब, ठीक है, आप बड़े सीनियर वकील हैं और बखूबी जानते हैं दावपेच, कानूनी दावपेच भी जानते हैं आप, लोगों की समझ भी है कि किस हद तक लोग जा सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। एक बात मैं ये कहूँ कि लोगों में एक मैसेज गई है, जुडिशरी के खिलाफ गई है लोगों में। लोग कहते हैं कि जुडिशरी में इंसाफ नहीं मिलता है गरीबों को, जुडिशरी में करप्शन है, और वकील जो है वो दलाली करते हैं। डिपेंडेंट का पैसा भी लेते हैं, रेस्पोंडेंट का भी पैसा लेते हैं, और केस लिंगरिंग ऑन कर रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल चलाते हैं। तो तब तक जो डिपेंडेंट होता है वो मर भी जाता है, तो इंसाफ उसे जीते जी नहीं मिलता है। ये जुडिशरी है यहाँ की, जो लोग खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग जुडिशरी पर, में इंसाफ नहीं है। तो क्या कहना है आपका? कुछ कानून लंबा चौड़ा है, लंबा प्रोसीजर है। कहीं वकील साहब भी डेटें लेने में जिम्मेदार है, कहीं और भी वजूह हैं जो इस प्रोसीजर में हायल आती हैं, लोग सफ़र करते हैं। ये बात सही है, लेकिन आम वकील दलाली नहीं करता है। पिछले 5-8 साल से हम देखते हैं कि इस प्रोफेशन में सेचुरेशन आ गई है। छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनकी मुलाजमत नहीं मिलती है, उनके ऑनरेबल जॉब नहीं है, पढ़े लिखे होते हैं, तो फिर इस प्रोफेशन को प्रेफर करके आते हैं तो बैठते हैं। हो सकता है कोताही हो जाती होगी, कहीं लोग परेशान वाकई हैं, लेकिन पूरा एक वकील ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए भी मैं कहूँ कि प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो जज साहब हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिकल हेड्स हों, वो जब ठीक हों तो सब ठीक है, वो गलत हैं तो सब गलत ही होता है।
क्योंकि फिर लिबर्टीज लेते हैं नीचे वाले ऑफिसर्स। जब ऊपर से स्ट्रांग हेड कोई हो तो फिर नीचे जरूरत नहीं करता है कोई रिश्वत लेने की या गलत बात करने की। अच्छा वकील साहब, आपकी क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए कि कानून जो है वो क्या अपना काम कर रहा है, कानून जो है क्या वो अपना काम नहीं कर रहा है, क्या कानून से लोग रुजू कर रहे हैं और उनको इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो अदालतें हैं जहाँ पे लोग पिस रहे हैं, जहाँ पे लोग 10-10 साल 20-20 साल 30-30 साल से पिस रहे हैं, इस पूरे सिनेरियो को आप सामने रखकर आप अपना क्या मैसेज देना चाहिए? जो आज चलता है ये पंचायती राज, अगर ये कामयाब होता है कश्मीर में तो इसका फैसला गांव में ही पंचायत मेंबर करता है या उसका चेयरमैन जो होता है करता है। उसको भी ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन की पता होती है, किसने किसका ज़मीन खाया है, किसका रिश्ता क्यों टूट रहा है, किसके क्या मसाइल हैं, और उसमें तुरंत कार्रवाई होती है। 1-2 डेट्स में 1-2 महीने में वो कंक्लूड होता है तो राहत मिलती है लोगों को। ये जो सिविल लॉ है हमारा, इसको हम कहते हैं इलास्टिक, जितना खींचो इतना लंबा होता जा रहा है। ऐसे में तो लोग परेशान होंगे ही, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आजकल लोगों में बेदारी आई है, वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर से बचना चाहते हैं, अभी घर में ही फैसला करते हैं या अपने आप को नुकसान में ही डाल के प्रेफर करते हैं कि नहीं जी दफ्तरों का चक्कर काटना अच्छी बात नहीं है, बेहतर है अपने पास ही मसले हल करना। ऐसे में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ये पंचायती राज जो है ये होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, और उसमें भी जो भी मेंबर्स आए लोगों को चाहिए कि वो ऑनेस्ट हों, वो अल्लाह के वास्ते सही फैसला दें और हक का फैसला दें। चलिए जनाब मीर साहब, आपका प्रोग्राम में आने का हम आपके प्रोग्राम में आने का खैर मकदम भी करते हैं और आपका इस्तकबाल भी करते हैं, इसलिए आज आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला फिर आपसे बात करेंगे सोशल इश्यूज लेकर। अस्सलाम वालेकुम।